Hello everyone, welcoming you all in today's online session for Standard 12 Statistics Part 2, Chapter number 2, Random Variable and Discrete Probability Distribution. In the previous lecture, we have learned exercise 2.1 till question number 5. Carrying further with question number 6. A die is randomly tossed 2 times. Determine the probability distribution of the sum of the number appearing both the time on the die and obtain the expected value of the sum. Expected value find करने की बात की गई है, means we got to find the mean. So before that, आप यहाँ पे sample space लिख दीजिए, okay, of 2 dice. हमारा पे sample space of tossing 2 dice, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, like this way. Write down the sample space first of all. लिखिए आप sample space, तब तक मैं अपने कॉलम बनाता हूँ. Kindly make the sample space first. Then I'll be explaining you what I have written on the board and why I have written this on the board. I hope so. It is complete. Your sample space is counted. Okay. We have been asked that the sum of the number appearing both the times on the dice. Sum मतलब दोनों को प्लस करना है. Your first number is 1 1, so your sum is 2. So your minimum number is 2. I think so. आपको अभी भी याद होगा. चैप्टर नंबर 1 में प्रोबेबिलिटी के अंदर पेज नंबर 4 में आपको ऑलरेडी सैंपल स्पेस देके रखा है इसका. ओके. सो मैंने वो क्लॉज वाला सिखाया था. आपको ये याद है तो ठीक है. तो मिनिमम सम इज 2 एंड मैक्सिमम सम इज 12. तो 2 आने के चांसेस जो है वो सिर्फ एक ही बार है, 1 1. 3 आने के चांसेस 2 बार है, 2 1 and 1 2. फिर 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, अगेन 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 1 टाइम. अब अगर टोटल करेंगे ना इसका, इट विल बी 36 by 36 is equal to 1. तो सिग्मा px is equal to 1 ऐसे प्रूव हो जाएगा. But we have been asked about the expected values, means we got to find the mean. So x into px हमें 2 1s are 2, 2 by 12, 6 by 12, 12 by 12, 20 by 12, 30 by 12, 7 6 are 42 by 12. 8 5s are 40 by 12, 9 4s are 36 by 12, 10 3s are 30 by 12, 11 2s are 22 by 12, 12 1s are 12 by 12. Let us add it up. 2 plus 6 8, 8 plus 12 20, 20 plus 20 40, 70, 110, 112, 152, 182, 188, 188, 198, 208, 218, 218, 228, 238, 240, 252. So we got to find the mean. That is Ex equal to sigma xi into Px is equal to 252 whole upon 12. अगर इसको हम छोटा करते हैं 252. अरे sorry, it is not 12, it is 36. 36 answer is there. Sorry for that. Because in dice, 2 dice, we get the answer as 36. Okay.
So 252 upon 36, 252 upon 36, that is 7. You got the answer for me as 7. Question number 7. A box contains 4 red and 3 blue balls. 3 balls are simultaneously drawn at random. If X denotes the number of red balls in the selected balls, find the probability of distribution of X and find the expected number of red balls in the selected balls. मेरे पास 4 रेड है और 2 ब्लू बॉल्स अवेलेबल है. मुझे कितने बॉल्स सिलेक्ट करने हैं? 3 बॉल्स सिलेक्ट करने हैं. मुझे यहाँ पे 3 बॉल्स सिलेक्ट करने हैं. X denotes the red balls. X denotes the red balls. रेड बॉल कितने मेरे पास यहाँ पे? मेरे पास रेड बॉल यहाँ पे 4 है. ओके. सो X के अंदर मुझे यहाँ पे डिनोट करना है विथ रेड बॉल्स. अगर मैं रेड बॉल 1 लेता हूं तो ब्लू बॉल कितने होंगे? 2. मुझे X के अंदर तो रेड बॉल का लिखना है. अगर मैं रेड बॉल 2 लेता हूं तो ब्लू बॉल कितने होंगे? 1. अगर मैं रेड बॉल 3 लेता हूं तो ब्लू बॉल कितने होंगे? 0. ओके. मुझे रेड बॉल को X पर डिनोट करना है. रेड बॉल कितने थे मेरे पास? 4C1. ब्लू बॉल लिए 2C2 होल अपॉन 6C3. 6 में से 3 से 4C2 मल्टीप्लाई बाय 2C2. यहां पे 2C 4C1 2C2 4C2 2C1 अपॉन 6C3. 4C3 दी रेड बॉल, एक भी ब्लू बॉल नहीं, अपॉन 6C3. 4C1 दैट इज 4. आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में कॉम्बिनेशन. 4C1 is 4, 2C2 is 1, so it's 4 upon 6C3. 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 into 1, that is 20. 4C2 that is 4, 2C1 2, that is 8 upon 20. 4C3 4, 2C01, that is 4 upon 20, that is 20 by 20 is equal to 1. हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया एक्सपेक्टेड नंबर, मतलब मुझे फाइंड करना है P. सो X into Px जो मुझे फाइंड यहाँ पे करना है. X into Px that is 4 by 20, 16 by 20 and 12 by 20. Total 12 plus 16 28 32. 32 by 20. Mean मतलब के Ex equal to sigma xi into Px equal to 32 upon 20 मतलब के 1.6. 8 2 so 4 12 4C2 4 into 3 12 upon 2, that is sorry it will be 12. Okay, तो ये 20 बना. Okay, this is 24. 12 plus 24 36 plus 4, that is 40. That is 40. That will be 2. Okay. Question number 8. A coin is tossed till either a head or 5 tails is obtained. If a random variable X denotes the necessary number of trials of tossing the coin, then obtain power distribution of random variable X and calculate its mean and variance. कॉइन को मुझे अगर टॉस करना है, जब तक एक हेड या 5 टेल ना आ जाए तब तक आप कॉइन को हमें टॉस करते रहे. ठीक है, कॉइन को टॉस करना है जब तक मेरे एक हेड या 5 टेल ना आ जाए. बाजू में सॉल्व करता हूं. एक बार हेड आ जाए. ओके, पहली बार कोई टॉस किया, हेड आ जाए. चांसेस क्या है Px में? 1/2. फिर टेल आए, 2 बार टॉस किया, टेल आया फिर हेड आया. चांसेस क्या है? 1/4. फिर 3 टाइम्स टेल फिर हेड आया. चांसेस क्या है? 1/8. 3 बार कोई टॉस किया ना. फिर टेल फिर हेड आया. 4 टाइम्स टॉस किया. चांसेस क्या है? 1/16. फिर टेल फिर हेड आया. ऐसा कुछ कहा गया ना. टेल फिर हेड आया. ओके, अब हेड
हेड और 5 टेल, या तो यहाँ पे ये भी तो पॉसिबल है, 5 टेल है, तो चांसेस क्या है यहाँ पे 2/32 मीन्स आई कैन से 1/16, छोटा करके 1/16। ओके, तो आपके अब x क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, px क्या आ गया 1/2 1/4 1/4 1/16 एंड 1/16। ओके, ये आ गया आपके x 1/2 1/4 1/8 1/16 1/16। आपको फाइंड करने को बोला है यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस दोनों। तो पहले x इंटू px कर लेते हैं, 1 जा 1/2, ये 2/4, ये 3/8, ये 4/16, ये 5/16। ठीक है, टेबल के अंदर ये अगर हमें सॉल्व कर लेना है, दिखाता हूं मैं आपको, x² इंटू px कॉलम बना लेते हैं साथ साथ में। ओके, अगर टेबल के अंदर सॉल्व कर लेना है 16 का एलसीएम लेते हैं अपने, तो ये तो है मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8/16, ये भी 8/16, ये भी 8/16। ओके, ये 6/16, ये 4/16, ये 5/16, 16 का बेस आ गया अपना, तो 8 + 8 16, 16 + 6 22, 22 + 6 26, 26 + 5 दैट इज 31। आपका आ गया मीन का आंसर 31/16। ओके, x² इंटू px करना, इससे बड़ी मैं करता हूं 8/16 इंटू 1 दैट इज 8/16, 8 2 जा 16/16, 6 3 जा 18/16, 4 4 जा 16/16, 5 5 जा 25/16, 25 + 16 41, 41 + 18 59, 59 + 16 69, 75, 75 + 8 that is 83/16। okay, we got as 83/16। so mean पूछा गया था पहले, तो mean मतलब ex equal to sigma xi into px, इसका आंसर आया 31/16। वेरिएंस पूछा गया है जिसको बोलते हैं Vx। ओके, या इसको डेल्टा स्क्वायर भी बोलते हैं। फॉर्मूला EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। EX² क्या है 83/16 माइनस 31/16 का होल स्क्वायर, 83/16 माइनस 31/16, 83/16 माइनस 31 का स्क्वायर दैट इज 961/256। अगर 256 का एलसीएम ले लेते हैं तो 83 इंटू 16 में करना पड़ेगा 1328 माइनस 1328 माइनस 961, 1328 माइनस 961/256 इज इक्वल टू, माइनस के लिए करते हैं 367/256, 367/256। आप टेबल के अंदर ही सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आपको सम बहुत ही लेंथी फील होगा। सम नंबर 9, a shopkeeper has 6 tickets in a box, 2 tickets among them are worth of price 10, 2 टिकट में प्राइस 10 रुपए है, रिमेनिंग 4 टिकट में प्राइस 5 रुपए का है। If a ticket is drawn at random टिकट सिलेक्ट करता हूँ, from the box find the expected value of the price। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी, या तो 5 रुपए या तो 10 रुपए। x के अंदर प्राइस या तो 5 रुपए या तो 10 रुपए। मुझे यहाँ पे 2 टिकट है, 2 टिकट में 10 रुपए का प्राइस है और 4 टिकट में 1 रुपए का प्राइस है। तो अगर प्राइस इतना हो, 4 में से 1/6C1 2C1/6C1 दैट इज px आपका आ जाएगा यहाँ पे 4/6, यहाँ पे आ जाएगा 2/6। तो क्या 6/6 हमें क्या पूछा गया है, हमें बस इतना ही पूछा गया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी गई है। ओके, सो x into px, 5 4s are 20/6, 10 2s are 20/6 total,
40/6 mean EX is equal to sigma xi into px 40/6 मतलब कि 20/3 पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं. ओके, so with this I completed exercise 2.1. Question number 6, 7, 8 and 9. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सैंपल स्पेस ड्रॉ करना कंपल्सरी है, तो काइंडली पहले सैंपल स्पेस ड्रॉ करना. सैंपल स्पेस ड्रॉ करने के बाद सम ऑफ द नंबर ऑफ डाइस डिनोटेड बाय x. मिनिमम x में 2 होगा और मैक्सिमम यहाँ पे 12 होगा. ओके, तो 2 आने के चांसेस 1/36, 3 आने के चांसेस 2/36. आप क्रॉस करके मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में आपको सिखाया था सम कैसे करना होता है. सो बेस्ड ऑन दैट ओनली आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे. यू हैव बीन आस्क्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू. जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर केसेस, एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर आपको यहाँ पे x को और px को मल्टीप्लाई करना है. एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है मीन आपके लिए. ओके, सो मीन फाइंड करना है. फॉर्मूला फॉर इट इज सिग्मा xi into px. x into px को मल्टीप्लाई आप कर दे, x into px को मल्टीप्लाई आप कर दे, प्लस कर दे, यू विल गॉट द वैल्यू फॉर मीन. इन द सेम वे नेक्स्ट सम में आपको पूछा गया था रेड बॉल सिलेक्ट करना है. मेरे पास यहाँ पे 4 रेड बॉल थे और 2 ब्लू बॉल थे. रेड बॉल को मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंस देना था, तो रेड बॉल मिनिमम 1 लेना पड़ेगा. तो 2 ब्लू बॉल लिए, फिर रेड बॉल 2 लिए, 1 ब्लू बॉल लिया, रेड बॉल 3 लिए, 1 भी ब्लू बॉल नहीं लिया. कॉम्बिनेशन वाला सम. ओके, यू ऑलरेडी नो कैसे मुझे कॉम्बिनेशन के सम यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करने होते हैं. ओके, हमने ऑलरेडी 11th में किया हुआ था. इसके px निकाला, हमें पूछा गया वन से एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो x into px किया सॉल्व मैंने यहाँ पे, एंड बेस्ड ऑन दैट मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू का आंसर अवेलेबल हो गया. सेम वे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मुझे बोला गया एक हेड चाहिए या तो 5 टेल चाहिए. तो पहली बार कॉइन को टॉस किया, 1 कॉइन टॉस किया, हेड एंड चांसेस हाफ होते हैं, हाफ. 2 कॉइन टॉस किए, पहला टेल आया फिर हेड आया, चांसेस 1/4. ओके, 3 कॉइन टॉस किए मैंने, पहला टेल फिर हेड, चांसेस 1/8. ओके, 3 कॉइन के रिजल्ट 8 आते हैं, 4 कॉइन के रिजल्ट 16 आते हैं, 5 कॉइन के 32 आते हैं. तो 5th वाले कॉइन में 4 टेल फिर एक हेड आया, एक आंसर सही भी आया, और 5 टेल भी तो चलेंगे. ऐसा बोला 5 टेल और है, एक हेड भी आया, 5 टेल भी पॉसिबल. 2/32 मतलब 1/16. फिर मुझे मीन भी फाइंड करना था, वेरिएंस भी फाइंड करना था. ओके, मैंने इसका एलसीएम यहीं पे सॉल्व कर लिया, तो मेरे लिए इजी होगा. ओके, नीचे वापस नीचे सॉल्व करना है बेटर, भी टेबल के अंदर सॉल्व कर रहे, इट विल बी वेरी मच इजियर फॉर यू पीपल. ओके, नेक्स्ट हमें ऐसा किया गया था कि प्राइस दिया हुआ है, प्राइस को डिनोट करना है रैंडम वेरिएबल x, प्राइस को डिनोट करना है. सो प्राइस 5 रुपए और 10 रुपए थी. प्राइस यहाँ पे 5 रुपए जीतेंगे उसके चांसेस थे 4. ओके, 4 थी, और 10 रुपए के लिए 2 प्राइजेस थी. तो मुझे प्राइस जीतना है, तो 4 में से 1 जीता, टोटल 61, या 2 में से 1 जीतता हूं तो 2C1/61. फिर मुझे px मिल गया, x into px में एक्सपेक्टेड वैल्यू मुझे पूछी गई है. सो विद दिस आई कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1. होप सो इट इज वेरी मच क्लियर विद यू पीपल. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द होल एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन. ये 2 मार्क वाले आपके सम्स है, 2 मार्क 3 मार्क में आपको पूछे जा सकते वाले सम्स यहाँ पे. सम्स बहुत ही इजी है, चैप्टर्स बहुत ही इजी है, बस you need to practice the sums again and again. Don't forget to practice the sums of chapter number 1 even. Don't forget part 1 is already completed. वो भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है. हर चैप्टर की आपको दिन में मिनिमम 8 से 10 सम रोज करने हैं, तो आपका एक हैबिट बना रहेगा, तो प्रैक्टिस बनी रहेगी, तो आपको याद रहेगा कि इसमें क्या मुझे करना है. ओके, टेक आउट वन एक्सरसाइज ऑफ ईच चैप्टर एवरी डे एंड सॉल्व द सम्स. तो आपको रिपीटेशंस में रहोगे तो आपको याद रहेगा हर सम में कैसे मुझे कैसे करना है. डोंट फॉरगेट कि बोर्ड एग्जाम है, फुल सिलेबस इज गोइंग टू कम इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. सो प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट, आप जो सम करते हैं रोज प्रैक्टिस करें. डेली वाइज हम जो पढ़ाते हैं वो तो आपको करना ही है, दैट यू हैव टू सॉल्व इट. इवन आफ्टर दैट जो हमने प्रीवियसली किए हुए दैट आल्सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स. ओके, थैंक यू वंस अगेन. हैव अ नाइस डे. स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग. थैंक यू ऑल वंस अगेन.